Hi, welcome to this unique hair care initiative by IPCA. I'm Mona Sharma, and it's my pleasure to be your host today. This unique initiative seeks to provide expert advice for various issues connected with hair care. Our hair is a crowning glory and it makes a world of difference to our appearance. However, our hair also requires special care and attention. Earlier, hair problem was associated with the middle age with losing of hair or thinning of hair or bald patchy hair. But with increasing pollution and the increase of stress in our daily work life, we are now seeing hair problems occurring even at a younger age. It is not uncommon now to see 25 to 35 years old people complaining about hair problems. Most of these problems, if identified early, can be managed well and much of the hair loss can be avoided. Today, we have with us Dr. Snehal Agarwal is a well-known dermatologist and hair transplant surgeon and has been practicing medicine for over 24 years now. She is MBBS, MD in dermatology and cosmetology. She is currently director and consultant dermatologist at Mehak the Derma and Surgery Clinic at Sarvodaya Enclave, South Delhi. Dr. Agarwal has dedicated her career to diagnosing and treating a wide range of skin and hair conditions while providing personalized healthcare services to her patient. She takes time to listen to her patient concern and work closely with them to give a generalized and the required treatment plan for their patient. Dr. Agarwal is aware for the need for the patient awareness and education about hair care and hence spend a lot of time in giving talks at various platforms across the country. Thank you, Dr. Agarwal, for sparing valuable time of yours and giving some answers to our questions today on hair care. Welcome to the show. Thank you, Mona. Thank you, Mona. I am Dr. Shehla Agarwal, and Shehla means fragrance. It's a Persian name, so that's why people misread it. So, Yeah, yeah, that no, it's it's okay. that is interesting. It's a Persian name and it means fragrance Yeah, and yeah. And like that's how like the clinic got named Mehek because it means the same oh, thing. So, uh, so we simplified it. thank So you, today Dr. we are Sela, here. for sparing your valuable time and My sparing pleasure. या या My वेलकम pleasure. टू द शो हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सो डॉक्टर आज हम हेयर केयर इन करंट सिनेरियो पे बात करने वाले सो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट हेयर केयर the first and the foremost thing which faced by all of us is the hair loss. So can you, doctor, enlighten us today what's normal and when to be concerned for? Yeah. Do you want me to be in English or shall we mix language? Would you prefer? डॉक्टर आज आजकल इंग्लिश चलता है सो चलता our है audience so are जो बोलचाल की yeah भाषा yeah है वही yeah चलेगी. Yeah. yes yes The thing thank is that hair fall is a day-to-day phenomenon. you. Everybody has hair fall. When it becomes a concern is the most important thing. You know, when the patient comes to me, the first question I ask is, why are you coming to me today? What prompted you to come to me today? Because it's not that yesterday the hair fall started or आज आप dermatologist के पास चले गए. बिकॉज पहले आप सब कुछ करोगे अपने हिसाब से, जब नहीं संभलेगा तब आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाओगे. सो हेयर फॉल हैज बिकम अ बिग कंसर्न. Somehow or the other it's causing lots of stress, and the stress is also responsible for the hair fall. So ideally 50 to 100 strands per day is normal, but you know, when you collect those 50 or 100 strands, it will break your heart. So मोटा माटी एक तरीका ये है कि अगर आपका फ्रिक्शनल हेयर लॉस हो रहा है, जिसका मतलब है आपने कंघा किया, बाल निकले, आपने बाल धोए, उसके बाद आपको ड्रेन में बाल नजर आए, दैट इज समथिंग यू आर डूइंग विद योर हेयर. आप कुछ ना कुछ कर रहे हो और उसकी वजह से वो हेयर निकल रहा है. और 90% ये जो हेयर निकलता है मोना, ये वो हेयर होता है जिसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती है. एज विल टॉक अबाउट इट लेटर के हेयर साइकिल क्या होती है, और वो लूज पड़ा हुआ होता है, तो आपने जरा सा भी उसमें खींचा खाचा वो हाथ में आ जाता है. दिक्कत जब होती है जब आपको नॉन फ्रिक्शनल हेयर लॉस होने लगे, जिसका मतलब यह है कि आपने कुछ नहीं किया, आप अच्छा भला सो रहे थे और सुबह जब आप उठे तो आपके तकिए पे आपको बाल नजर आ रहे हैं. यहाँ पर मेल्स में ये बाल देखना बहुत आसान हो जाता है बिकॉज छोटे बाल होते हैं. फीमेल्स में क्योंकि वो छोटी गुंदी रहती है या बाल में बैंड लगा रहता है तो आपको पता नहीं लगता है. तो अगर आप अपना बैंड, हेयर बैंड निकाल रहे हैं और उसमें हर बार 10 से 11 बाल आ रहे हैं, हर बार का मतलब अगर आप दिन में उसको 3 बार कोम करके निकाल रहे हैं, तो वो सिग्निफिकेंट हेयर लॉस हो जाता है. और इसीलिए जब
कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो फर्स्ट थिंग वी वांट टू डू इज क्वांटिफाई द हेयर लॉस, कि क्या वो पैथोलॉजिकल हेयर लॉस है, क्या वो बीमारी की स्टेज तक पहुंच गया है जहां पर आपको एक्टिव इंटरवेंशन की जरूरत है, या आपको लग रहा है पर वो एक जिंदगी का हिस्सा है। तो जब हम बात करेंगे व्हेन वील टॉक ऑफ द कॉजेस, तो देन यू विल रियलाइज कि सो मेनी कॉजेस आर इनहेरेंट टू आवर लाइफस्टाइल. So that's why the hair loss, when you feel that you cannot control it, definitely go to a doctor so that the doctor at least can decide, do you need an extensive treatment or do you only need supplements which will help in the hair health. ओके, सो एवरी डे लाइक आप अगर बार बार 10 से 11 बार आपके बाल झड़ रहे हैं तो इट मींस यू आर फेसिंग अ हेयर प्रॉब्लम एंड यू जी शुड विजिट द हाँ, डॉक्टर। और अगर मेल्स के तकिए पे बाल आ रहे हैं कि आप सो के उठे हो, नॉन फ्रिक्शनल हेयर लॉस आपको 8-10 बाल नजर आ रहे हैं, तो वो इट्स अ सिग्निफिकेंट थिंग, तो ये आपको उस टाइम डॉक्टर को अप्रोच जरूर करना चाहिए. Okay, interesting, doctor. Like you said, like what are the like general causes? So can you please enlighten us? Like what are the general causes for बिल्कुल hair loss? Yeah. बिल्कुल. द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज मैं सबसे पहले जो लेना चाहूंगी वो है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, जो मेल पैटर्न बॉल्डनेस बोलते हैं. फीमेल पैटर्न भी होती है. व्हाई आई एम टेकिंग अप दिस इज बिकॉज व्हेन द प्यूबर्टी हिट्स द यंग बॉयज 17-18, टेस्टोस्टेरोन सडनली बढ़ता है. जब वो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो दैट लीड्स टू शॉर्टनिंग ऑफ द हेयर साइकिल और बाल गिरने लगते हैं, और 22 साल तक काफी बाल गिर जाते हैं. ये मैं सबसे पहला कॉज ले रही हूँ इसलिए बिकॉज आई वांट द यंगर बॉयज टू नो एंड देयर पेरेंट्स टू नो कि दिस इज द क्रूशियल टाइम, दिस इज द डेंजर टाइम. तो अगर आपका बच्चा लड़का जैसे 17 का हो रहा है और अगर थोड़े भी बाल गिर रहे हैं तो वो टाइम है जब आपको उसको ध्यान देना है. आप 25 के बाद हमारे पास आओगे फिर तो हम उसको जो रह गए हैं उसको बचाते रह जाएंगे. So to prevent excess hair loss, because this is almost like, you know, reaching puberty. The sign of reaching puberty in a boy is increase in testosterone, which is directly related to the hair loss. Then there are multiple other causes. Then we come to the general thing. If your hair is a reflection of your health, health means both physical health and mental health. So if by chance you have had a severe bout of viral, or you had a surgery, or you had any kind of bodily trauma, I'm talking of a physical thing. इसमें टाइफॉइड एक बहुत बड़ा कॉज रहता है. जब कोरोना आया था तो अप्रैल was corona, and by July people were shedding hair. So जिस दिन आपकी बॉडी में स्ट्रेस हुआ उस दिन the body tries to conserve energy. I'm trying to, you know, tell you the logic of all these things because वो सिर्फ 1 2 3 4 cause करना बहुत आसान हो जाता है. Sometimes this is the sequelae of what happened and it will recover. So you don't have to worry that much कि फिर आप stress को एक cause बना दो. The day you have a physical stress, it can be a surgery, it can be a viral fever, it can be typhoid, it can be anything. The body tries to conserve energy. When it tries to conserve energy, so the energy to the non-essential things is reduced. This is a non-essential thing. It has no job except to make you look good. Hair it's a vestigial organ. Like appendix is a vestigial organ, so hair in us is also a vestigial organ. So जब आपकी growth की आपकी energy supply रुक गई, nutrients रुक गए, तो hair growth रुक गई. तो जो बाल already है वो इतना अंदर है, 4 to 5 मिलीमीटर अंदर है. 2 महीने तक वो आराम से चलता रहेगा. 2 महीने के बाद नया नहीं होगा तो वो आपके हाथ में आने लगेगा. I can count exactly 2 months the day you start shedding your hair when you had the problem. So this is about a specific event where you had an issue. But the other problem is if you are a poor eater, if you're not taking your nutrients, you have to understand that hair needs to be supplied. उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी. अगर आप आयरन डेफिशिएंट हैं और आपने 2 टैबलेट आयरन की खा ली, वो आयरन जाके हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा बिकॉज हीमोग्लोबिन आपकी जिंदा रहने के लिए जरूरी है. वो फेरेटिन जाके नहीं बढ़ाएगा जो आपके स्टोर्स में है और जो आपके बालों के लिए जरूरी है. सो इफ यू आर अ पुअर ईटर इन एनी वे, इफ यू क्रैश डाइटेड, आपने डाइटिंग की लग के
2 हफ्ते बाद आपके बाल हाथ में आने लगेंगे, बिकॉज जितना आप सप्लाई कर रहे हो बॉडी को, उतनी नीड तो वो बेचारा अपनी नॉर्मल बेसल मेटाबॉलिक में नहीं पूरा कर पा रहा है, तो वो बाल को कहाँ से मिलेगा? तो बाल हमेशा वो जरूरी है। पोस्ट चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ईस्ट्रोजन इतना हाई होता है कि वो सारे बाल ग्रोथ फेज में चले जाते हैं। सब लेडीज आर कि द ग्लो एंड द हेयर्स आर लशफुल ग्रोथ ऑफ हेयर। फिर जब तक लैक्टेशन चल रही है, प्रोलैक्टिन थोड़ा बहुत रखता है, पर जिस दिन बच्चे की लैक्टेशन बंद होती है, उस दिन वो ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है और सारे बाल हाथ में आ जाते हैं। पर ये सब वो चीजें हैं जो ये बाल अपनी जिंदगी खत्म कर चुके हैं, और वो दोबारा नहीं आ जाएंगे। मतलब बाल इज समथिंग विच इज अ लिविंग स्ट्रक्चर। जैसे स्किन को हम बोलते हैं कि 30 डेज में रिन्यू करती है, हर बाल, ईच इंडिविजुअल स्ट्रैंड रिन्यूज इटसेल्फ इन 3 to 5 years। सो ऐसा नहीं है कि बाल गिर गया तो खत्म हो गया। दिक्कत क्या होती है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया, तो वो जो अक्यूट हेयर फॉल हो रही थी, जो हमने गिना के 50-100 बाल हो रहे थे, वो 50-100 बाल कभी रिपेयर ही नहीं हुए। सो अब जो आपके हेड पे नॉर्मली मान लीजिए अगर 3 लाख बाल थे, तो वो 2.5 रह गए, फिर वो 2.5 के 2 रह गए, तो देर इज अ स्पार्स थिनिंग ऑफ द हेयर। तो इसलिए ट्रीटमेंट, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं आजकल जो कॉमन चीजें, जो ड्रग्स हैं, हाइपोथायरॉइड या हाइपरथायरॉइड, दोनों में से कुछ भी है तो वो बाल को इफेक्ट करेगा। कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, बिकॉज बहुत लोगों को ये दवाएं चल रही होती हैं और वो बहुत सिवियर हेयर फॉल करती हैं। फिर एक्ने के लिए जो रेटिनॉइड्स दिए जाते हैं, वो हेयर फॉल करता है। तो हमारा काम, जब कोई हमारे पास हेयर फॉल के लिए आता है, तो पहला काम है उसका कॉज ढूंढना। जब तक आप कॉज नहीं ढूंढेंगे, तब तक आप उसको ठीक नहीं कर सकते। ओके, सो मतलब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के वजह से भी हमें हेयर फॉल होते हैं, तो बिल्कुल, अगर हम बिल्कुल, बिल्कुल। if, so like any other organ we should also get our hair regularly check up kind of a thing so that we can maintain our एग्जैक्टली, beauty. एग्जैक्टली। हेयर जो है ना, आपको खुद बता देगा कि कुछ गड़बड़ चल रही है आपकी हेल्थ में। तो अब आप जाके अपना हेल्थ चेकअप कराइए। तो हेयर बिकम्स एन इंडिक, आप बिलीव नहीं करोगे कि हेयर फॉल से कितनी चीजें हमने लोगों में थायराइड डायग्नोज किया, लोगों में सिवियर एनीमिया डायग्नोज किया, आए वो हेयर फॉल के लिए थे। तो वो जो बेसिक कॉज था, जब तक आप कॉज को ट्रीट नहीं करोगे, और देखो मोना, वही बात है कि जैसे मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूं, तो मैं यही बोलती हूँ, जब हेयर फॉल शुरू होती है तो सबसे पहले अनियन जूस, गार्लिक जूस ही आता है, ठीक है। फिर जो मैगजीन में नुस्खे लिखे होते हैं वो आते हैं, फिर दादी नानी मेथी दाना बना के दे देती है, फिर आप अपने आप जाके केमिस्ट के यहाँ से कुछ अपनी लोशन लूशन लगाते हो। जब वो सब काम नहीं करते, देन यू सीक द डॉक्टर। So you have already done those 1, 2, 3, 4 steps by the time you come to us. So we have to investigate you to treat you. What is the cause? मतलब हम पूरा मैसअप होकर आपके पास आते हैं सो दैट यू नो सो बेटर नॉट टू देखो, आप पिटीशन डालने सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। या तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली शायद अगर 100 लोगों को प्रॉब्लम है, तो उसमें से 90 इन सब चीजों से ठीक हो जाते हैं, विच इज अ गुड थिंग। मकसद ये है कि आप ध्यान देना शुरू करो। हाँ, यस कुछ जैसे हम आगे बात करेंगे, कुछ जो कॉमन इश्यूज होते हैं जो जिसकी वजह से हेयर फॉल, जैसे अब इसी को अगर हम लाइफस्टाइल को आगे करें, आपका हेयर स्टाइल क्या है उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बच्चों के वो टाइट पोनी खींच के बना देते हैं, तो आप एक छोटे से धागे पे एक पत्थर लटका के आपने यहाँ पर एक रबर बैंड चिपका दिया, तो वो धीरे 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 बाल ऐसे खिंचता चला जाता है, और उसको हम बोलते हैं ट्रैक्शन एलोपेशिया। तो ये मांग पीछे होती चली जाती है। और अगर आप मांग निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे वहां की पार्टी चौड़ी होती चली जाती है। एक्चुअली जो ब्रॉडन पार्टिंग है, उससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कितना पहले था, कितना अब हुआ। आइडियली आपको मांग नहीं निकालनी चाहिए। अगर आप बाल धो के आए और उसके बाद आपने 2-2 बाल निकाल के, जैसे ऐसे टेल कोम से बाल निकालिए और इसको इधर इधर कीजिए और 2 दिन क्लिप लगा लीजिए, पिन लगा लीजिए, आपकी मांग निकलनी बंद हो जाएगी। तो मांग जो है वो जितना आप उसको सीधा रखेंगे, उतना ही वो पार्ट होता चला जाए। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इफेक्ट करती हैं, और खासकर यंगर लड़कियों में बहुत इफेक्ट करती हैं। वो जो टाइट वो लगा होता है, और वो जो क्रंची लगा हुआ होता है, वो बालों को क्रंची कर देता है। और वेरी उसके इंटरेस्टिंग अलावा, बिल्कुल, और उसके अलावा जो लड़के स्टाइलिंग जेल लगा रहे हैं, तो वो स्टाइलिंग जेल भी आपके बालों को आपने लगा लिया, मुझे कोई उसमें वो नहीं है, आई एम सॉरी, मेरे भी बाल मिसअप हो गए, मैं उसको हाथ लगाते
Yeah, तो yeah. आपने स्टाइलिंग जेल लगा लिया, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी उम्र है, आपके बाल हैं, आप लगाइए, लेकिन उसको लगा के फिर आप सो नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि वो लगा के फिर आप उसमें कोम कर रहे हैं, फिर आप उसमें स्टाइलिंग कर रहे हैं, वो सेटिंग प्रोडक्ट्स हैं। और Mhm. मौसम के हिसाब से लगाइए, अगर इतनी 45 डिग्री वाली गर्मी हो रही है तो जेल बेस्ड चीजें लगाइए। हाउ कैन यू पुट Mhm. वैक्स, हाउ कैन Yeah. यू पुट थिक वैक्स? तो आप तो और पोर्स को बंद कर रहे हैं। तो अक्लमंदी की जरूरत है थोड़ी सी कि अपने बालों की सुनने की। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज, मेरे पास बहुत सारा सामान होता है बोलने के लिए तो Mhm. Yeah, yeah. Yes, बिकॉज doctor. आई नो Yes. इस टेलीकास्ट का और इस यूट्यूब लाइव का मकसद भी यही है कि आपको हमारी जरूरत ना पड़े, आप पहले ही संभल जाएं। Yeah. हिंदुस्तान में और खासकर मेल्स में ये एक बहुत बड़ी आदत है कि हम पूछते हैं कि बाल कितनी बार धोते हैं, हम तो रोज धोते हैं। वो धोते नहीं है, वो गीला करते हैं रोज। तो Okay. आप जब बाल गीला करते हो, जैसे आप अगर हाथ को पानी में डुबो के रखोगे, उसमें वो क्रीजेस आ जाएंगी, बिकॉज Mhm. ये प्रोटीन है, Mhm. Yeah. केराटिन है ना, प्रोटीन है। नेल्स भी आपके सिकुड़ जाएंगे, हाथ भी यही हाल बालों के साथ हो। जब आप Mhm. उसको गीला करते हो तो इट एब्सॉर्ब्स वाटर, इट Mhm. एब्सॉर्ब्स वाटर, तो वो फूल जाता है, तो वो फूल के बाहर निकलना उसका बहुत आसान हो जाता है। तो Mhm. या तो आप शैम्पू करेंगे, जो आप हफ्ते में अगर 3 दिन भी करते हैं तो काफी काम चल जाता है, रोज करने की जरूरत नहीं है। या Mhm. फिर आप गीला नहीं करेंगे। ये लॉजिक लोगों को समझ नहीं आता है। और खासकर जो जिम जा रहे हैं उनको तो भाई रोज धोना ही पड़ेगा। क्योंकि Mhm. अगर आप घर पे आके आपने बाल खोले और आपको लगा जी सूख गए एसी के आगे बैठ के, सूखा तो पानी ना, जो हाँ, सॉल्ट निकला उसमें वो तो वहीं रह गया। या तो या थोड़े दिन बाद फिर आपके सर में खुजली होने लगती है, फिर डैंड्रफ होने लगता है। एक्चुअली शावर कैप की इजाद इसीलिए की गई थी कि अगर आप शावर से नहा रहे हैं तो कम से कम बाल गीले मत कीजिए। हिंदुस्तान में तो शुक्र है कि हम बाल्टी मग से नहाते हैं, तो मत डालिए ना सर से, नीचे से नहाइए। exactly, doctor. Very interesting, very informative. So, हाँ, these doctor, are like, very practical things which frustrate us yeah. because आप जब तक अपनी बेसिक हैबिट्स, एक छोटी सी हैबिट है फीमेल्स में, मैंने देखा बाल आगे करके झाड़ रहे हैं उसे, मतलब नहा के आए हैं, रगड़ रहे हैं, झाड़ रहे हैं, तो वो बाल तो ऑलरेडी गीला है, उसकी तो जिंदगी वैसे ही धागे से लटकी हुई है, आप उसको और झाड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए 10 मिनट, 10 मिनट में वो सूख जाएगा, पानी जो एवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद आप फिंगर से उसको कोम कीजिए पहले, ताकि एक्सेस आप उसमें ना करें। अगर सीजन ऐसा है, जैसे आजकल तो गर्मी है, पर जब चेंज ऑफ सीजन होता है तो चार्ज होने लगते हैं बालों में। आप कंघा लगाते हैं तो आपको लगता है कि जैसे वो पूरे बाल खड़े हो गए, चार्ज हो रहे हैं, तो प्लास्टिक का कोम मत कीजिए, उस दौरान लकड़ी का कोम कीजिए। ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। मतलब वो कहना बहुत आसान है, बाल गिर रहे हैं, पर बाल गिराए तो आप ही ने। Yes, doctor. Actually, it's a problem. So, like, doctor, you also said that poor eater and all. So nowadays, we all are having hectic lifestyle, like no sleeping time, nothing, and work from home, so much of stress. So, can a person lifestyle also play a role in hair loss? बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, स्ट्रेस क्या होता है, आपकी ऑक्सीडेटिव हेल्थ को खत्म कर देता है। जब Mhm. कोरोना आया था तो हम सबने इम्यूनिटी की अहमियत जानी थी Mhm. कि आप कितने अंदर से स्ट्रांग हैं। उसी ने डिटरमिन किया कि आपका सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल गया या आपको पूरा स्पेक्ट्रम हुआ। तो Mhm. वही चीज हर चीज में डिपेंड करेगी। स्ट्रेस आके आपको कोई डंडा थोड़ी मारेगा कि भाई अब आप स्ट्रेसफुल हो रहे हैं तो आपको डंडा लग रहा है, वो आपकी हीलिंग पावर खत्म कर देता है। क्या होता है बॉडी के अंदर, हर तरह के सेल्स हैं, हर तरह की वैलेंसीज। O2 है, ऑक्सीजन है, वो O2 है, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड है, वो NO है। अगर Mhm. आपके शरीर में O3+ बन गया, Mhm. तो वो Mhm. प्लस जो है वो खाली वैलेंसी है, वो घूम रहा है, वो चाहता Mhm. है कि उसको कोई उसकी थर्स्ट को क्वेंच कर दे, तो वो जाके किसी सेल पे चिपक जाता है और उस सेल की जिंदगी वहीं खत्म कर देता है। दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो Mhm. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आपकी सेल लाइफ की हेल्थ को और आपकी सेल लाइफ की जिंदगी को खत्म कर देता है। तो Mhm. अगर आप पॉजिटिव अपना ऑक्सीजनेशन, और बड़ा सिंपल सा तरीका है, सिर्फ आपको ऑक्सीजनेशन अपनी अच्छी रखनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है। हम लोग यहीं तक सांस लेते हैं, Mhm. लंग्स के नीचे तो हमारा कभी डायफ्राम तक जाता ही नहीं है। तो Mhm. अगर आप डीप ब्रीदिंग भी 10 मिनट के लिए कर लेंगे, मैं ये साथ बता रही हूँ बिकॉज नहीं तो बाद में हम भूल जाएंगे। तो Mhm. अगर आप ये आदत डाल लेते हैं,
डीप ब्रीथ करके आपको फील हो आपका डायफ्राम जा रहा है, द लंग्स विल एक्सपैंड, द ऑक्सीजन क्वांटिटी विल बी मोर एंड दिस एक्स्ट्रा ऑक्सीजन विल बी यूज टू कॉम्बैट दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो अब स्ट्रेस तो जिंदगी में रहेगा ही रहेगा, वर्क फ्रॉम होम भी रहेगा, ट्रैफिक भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। तो अपनी आदतें सुधार लीजिए ना, कि वो आपकी जिंदगी को ना परेशान करे। तो यस, लाइफस्टाइल तो डेफिनेटली, और वही बात है, क्रैश डाइटिंग भी तो लाइफस्टाइल में ही आती है, कि बस कोई फंक्शन है तो फटाफट खाना पीना बंद कर दिया। तो मैंने जैसे बोला कि अगर आप इनपुट कम करेंगे न्यूट्रिएंट्स की, तो बॉडी जो है वो सप्लाई टू नॉन असेंशियल बंद कर देगी। तो फटाफट विद इन 2-3 वीक्स, यहाँ तो 2 महीने भी नहीं लगते, आप 2 हफ्ते डाइट कीजिए और उसके बाद अपने बाल हाथ में ले लीजिए। Interesting, doctor. So, in fact, like as you said, lifestyle is also important. Nutrition बिल्कुल is also बिल्कुल। important. Yeah. So, डॉक्टर लाइक अब तो लाइफस्टाइल की बातें हो गई, कॉजेज, और हमें ये भी पता चल गया हेयर लॉस क्यों होता है। तो अनदर क्वेश्चन विच कम्स अप टू आवर माइंड, लाइक व्हाट आर द मेडिकल ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, लाइक क्या ओरल है, सर्जिकल है, नॉन सर्जिकल है, या फिर लाइक पॉपिंग पिल एंड कैन ऑल्सो हेल्प हेयर लॉस मैनेजमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब कोई हमारे पास आता है, देर इज अ लॉजिक, देर इज अ स्टेप बाय स्टेप थेरेपी। ऐसा नहीं है कि यू वॉक इन टू माई क्लिनिक और मैं पीआरपी शुरू कर दूंगी, या हाँ, वो ऐसा भी होता है कि अब आप मेरे पास सारे बाल उड़ा के ही आए हैं, तो अब मैं क्या उसमें लोशंस लगवा दूंगी और क्या कर लूंगी, तो मैं आपको सीधा ट्रांसप्लांट क्लिनिक भेज देती हूँ। तो हर चीज की एक उम्र होती है। मैं वही बोल रही हूँ ना, आप कितना नुकसान करके आए हैं उस पर डिपेंड करेगा। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग हियर अगेन, जो यंग मेल्स हैं 17 to 22, प्लीज अपने बाल ना गिरने दें, बिकॉज ये वो उम्र होती है जब रिपेयर हो जाती हैं चीजें। तो अब देखिए, जो खूबसूरती है, जो स्किन और हेयर की खूबसूरती है, कि आप टॉपिकल ट्रीटमेंट से काम कर सकते हैं। आप जो है जो लगा रहे हैं वो बाल के अंदर जाके उस पे काम कर लेगा, तो आपकी ये खूबसूरती है। तो पहली चीज हमेशा टॉपिकल ट्रीटमेंट से शुरू होती है। अब टॉपिकल ट्रीटमेंट विल डिपेंड ऑन के आपकी वजह क्या हो रही है, जिसमें अलग देखिए, आप जो बाल गिर रहा है उसकी जिंदगी बढ़ा दीजिए, आप हेयर की ग्रोथ, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ा दीजिए, आप जो हेयर की क्वालिटी है उसको बढ़ा दीजिए। तो आप सब तरफ से जब काम करेंगे तो वो हेयर की हेल्थ अपने आप बेहतर हो जाएगी। तो पहला स्टेप होना हमेशा टॉपिकल थेरेपी होता है। टॉपिकल थेरेपी में ये डिपेंड करता है कि वजह क्या है। तो जो शुरू वाले बच्चे आते हैं, एंड एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग आजकल तो सब ओवर द काउंटर मिनॉक्सिडिल तो लगा के ही आते हैं, क्योंकि मिनॉक्सिडिल क्या करती है कि वो हेयर की सर्कुलेशन को बढ़ाती है। तो जब वो सर्कुलेशन को बढ़ाती है, जाहिर बात है कि जब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, व्हेन द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस सो द हेयर लाइफ इंक्रीजेस, एंड इट प्रिवेंट्स द मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल। दिस इज अ वेरी interesting thing. If you look with a lens, or if I look under dermoscope on a bald patch of a young male जिसके अभी तक बाल बहुत ज्यादा नहीं गए हैं, बाल वहां नजर आता है, लेकिन वो बाल बजाय थिक बाल होने के रुआं बन गया है। फ्रॉम टर्मिनल हेयर इट शिफ्ट्स टू विलस हेयर। अब विलस हेयर क्योंकि वो पतला है तो वो नजर नहीं आता, तो द होल अपीयरेंस इज ऑफ बॉल्डनेस, बट द हेयर इज स्टिल देयर। स्पेशली जो इन्वर्टेड वी बन जाता है, जैसे हमारी जो हेयर लाइन है, आपने कभी चिंपैंजी को भी देखा हो, चिंपैंजी, ह्यूमंस, वी ऑल हैव इन्वर्टेड वी, एम वाली हेयर लाइन बनती है हमारी। तो वो धीरे 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 वो एम का वी जो है वो पीछे जाता चला जाता है। तो इसमें मिनॉक्सिडिल वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज वो क्या करता है, वो रिवर्सल ऑफ मिनिएचराइजेशन ऑफ हेयर फॉलिकल कर देता है। तो ये इट्स अ वेरी गुड सोल्यूशन इन यंगर पीपल, बट फॉर हाउ लॉन्ग? और एंड दिस इज अ गुड सोल्यूशन विच वी यूज आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्सो। तो वहां भी आपके नए नए बाल आए हैं, तो आपको उसे भी बचाना है। तो मिनॉक्सिडिल के साथ थोड़ी सी दिक्कत यह है कि पहली बात तो यह है कि कम से कम 8 हफ्ते लगते हैं उसका फुल इफेक्ट आने में। सो यू हैव टू बी पेशेंट। इन सम पीपल इट कैन बी लॉन्गर, बट द इफेक्ट विल डेफिनेटली बी देयर। सम पीपल गेट इरिटेटेड बाय अप्लाइंग मिनॉक्सिडिल। उसके लिए आजकल बड़े तरह तरह की प्रिपरेशंस आ गई हैं, नॉन अल्कोहलिक है, स्प्रे है, फोम है, जेल है। तो आपको जो सूट करता है वो करता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि मिनॉक्सिडिल जब आप यूज करना छोड़ते हो, तो कई बार जो बाल उसके इफेक्ट से उगे हैं वो थोड़े दिन बाद
वापस वहीं चले जाते हैं। सो दिस ऑल वी हैव टू डिसाइड कि हमें करना क्या है। सो मिनॉक्सिडिल बीइंग द फर्स्ट स्टेप, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास तक लोग एक्चुअली मिनॉक्सिडिल लगा के पहुंचते हैं। फिर हमारे आ जाते हैं हेयर वाइटलाइजर्स, जिसमें आपका रिकैपिल, प्रोकैपिल, अमाइनो एसिड्स। इनका मेन मकसद है ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाना। ये बात कर रहे हैं कि ये आपके हेयर फॉलिकल की सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर ही बात है जब आपके हेयर को न्यूट्रिएंट मिल रहा है तो उसकी जिंदगी बढ़ रही है। तो ये हमारी टॉपिकल ट्रीटमेंट्स हैं जो हम जनरलाइज्ड हेयर फॉल के लिए देते हैं। अगर आपको एलोपेशिया एरिएटा है, उसमें हम इंट्रालीजनल स्टेरॉइड भी लगाएंगे। अगर कुछ वो अलग अलग चीजें अलग अलग हो जाती हैं। लेकिन ज्यादातर जब हम टॉपिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम साथ में मल्टीविटामिन देना चाहते हैं, क्योंकि हम अंदर और बाहर दोनों से ठीक करना चाहते हैं। जैसे मैंने कहा कि लोग डॉक्टर के पास तब पहुंचते हैं जब चीजें सिवियर हो जाती हैं। 2 बाल गिरने पे तो कोई नहीं जाता, मैं भी नहीं जाऊंगी। अगर 2 बाल गिर रहे हैं तो ठीक है, कल को ठीक हो जाएगा। जब 20 गिरने लगते हैं तब आप जाते हो। तो वहां पर फिर आपका ओरल एंड टॉपिकल साथ में किया जाता है। अगर एक लेवल का आपका ठीक है, चल रहा है, लेकिन फिर वही बात है, एज का भी एक जरिया होता है, जीन्स का भी एक जरिया होता है, तो जिसके बाद फिर हो सकता है आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत। उससे ट्रांसप्लांट से पहले हमारी आ जाती है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जहां जैसे लोशन आपने लगाया तो आपने लगा के छोड़ दिया और आप इस भरोसे हैं कि वो अपने आप परकोलेट कर जाएगा, पर स्किन तो कोई छन ही नहीं है कि आपने कुछ लगाया वो फट 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 अंदर चली गई। तो इसके लिए यूज होती है मीजोथेरेपी। मीजोथेरेपी में हम ये अगर एपिडर्मिस है तो हम दवा को यहाँ पहुंचा देते हैं जहां पर बाल। सो वी जस्ट असिस्ट द मेडिसिन टू रीच वेयर इट इज सपोज टू वर्क, दैट इज मीजोथेरेपी। उसमें अलग अलग कॉकटेल्स यूज की जाती हैं। लव्स कॉकटेल है जिसके अंदर विटामिन डी होता है, पेंटाथेनॉल होता है। तो वो अलग, उसका काम यही है कि वो आपकी हेयर रिजनरेशन करे। इट गिव्स अमेजिंग रिजल्ट्स। मतलब मेरे पास तो जब तक लोग आते हैं तब तक वो मीजो की हालत में होते ही हैं। एंड मीजो कैन बी नॉन इन्वेजिव। आई हैव अ नॉन इन्वेजिव मीजोथेरेपी जिसमें कोई नीडल सिरिंज नहीं है, नहीं तो ज्यादातर लोग मीजो पेन से कर रहे हैं। उसके बाद आ जाता है पीआरपी। ये नाम मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज आजकल ये चलन, शौक, फैशन हो गया है कि हमारी पीआरपी कर दीजिए, हमारा ये कर दीजिए। आप मुझे ना बताएं, मैं मेरे को डिसाइड करने दें आपको क्या चाहिए। तो पीआरपी इज प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जहां आपका ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसमें से ग्रोथ फैक्टर्स निकाल के उसको मीजो नीडल से ही अंदर डाला जाता है। तरीका वही है। अब हमारे पास, जैसे मैं अब ब्लड लेके पीआरपी नहीं करती हूँ, मेरे पास सिंथेटिक ग्रोथ फैक्टर्स हैं। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स जो आपके हेयर जर्म में जाके जो उसको ठीक कर रहे थे वो आपको दिए जा रहे हैं। फिर आ जाता है जी ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट तो या तो पूरा आपका स्ट्रिप निकाल के किया जाता है या एक एक फॉलिकल से किया जाता है। इट इज सक्सेसफुल, वेरी सक्सेसफुल। और दूसरी चीज मैं यहाँ बोलती चलूं, आपके बजट के हिसाब से आपको ट्रांसप्लांट सर्जन भी मिल जाएगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी क्रेडेंशियल्स देख लीजिएगा। आजकल तो ये हो गया है कि हर आदमी अपनी एक टीम लेके बैठा है, बिकॉज इट्स अ लेबर इंटेंसिव जॉब। उसमें कोई टेक्निक नहीं है, उसमें बस करने वाले को पेशेंस और आना चाहिए। तो वो लोग अपना छोटा सा सेटअप लेके भी बैठे हुए हैं, पर उसमें फिर आपकी पोस्ट केयर क्या होगी, आपकी जो ड्रेसिंग्स हैं वो कौन करेगा? बिकॉज लगा तो दिया पर उसको वहां पर उगाना भी तो है। तो इसलिए कई बार लगाना आसान होता है, उसको मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक जब भी देखें तो उसके किसी पेशेंट का रिव्यू बात करके 2-4 बार देख ले। तो ये अरे ऑफ ट्रीटमेंट्स है, और ये हमारा काम है टू डिसाइड करना कि व्हाट स्टेज ऑफ हेयर लॉस आर यू इन, सो दैट वी गिव यू व्हाट ट्रीटमेंट। Okay, doctor. So, like any other disease, early diagnosis is important to avoid the बिल्कुल complications. बिल्कुल 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 बिल्कुल। Okay, doctor. So, doctor, like there is one word called nutraceuticals, which is getting lot of like everybody talks about nutraceutical even on the Insta page and Facebook and other. So, doctor, can you बिल्कुल enlighten us what is nutraceutical and what is the role of nutraceutical in hair health? बिल्कुल। जैसे मैंने बोला कि हेयर इज अ प्रोटीन स्ट्रक्चर, सल्फर से बना हुआ है। तो बहुत सारे हमारे बॉडी के अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टीन है, लाइसीन है। और न्यूट्रास्यूटिकल, स्यूटिकल मींस
जो आपकी फार्मास्यूटिकल जो होती है कि जो आपको नरिशमेंट दे रही है, और न्यूट्रा मीन्स जो आपने नेचर से ली। अब आ तो सब कुछ नेचर से ही रहा है, ऑलवेज से कि वो टैबलेट जो है वो किसी लैब में नहीं बन रही है, वो एक्सट्रैक्ट तो कहीं ना कहीं से हुआ ही है। न्यूट्रास्यूटिकल आपकी हेयर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है, हेयर ग्रोथ को एक्टिवेट कर रहा है, आपकी जो थिन हो गए थे बाल, स्पार्स हो गए थे, उसको बेहतर कर रहा है। इट हेल्प्स इन हेयर ग्रोथ। दिक्कत क्या है मोना, कि ये डिसाइड करना कि कब वो आपके लिए अमृत है और अब आपको रोक देना चाहिए। तो दिस इज नॉट अ अंधाधुंध थिंग कि बस रोज वो खा रहे हैं, या जैसे आजकल वो जो होती है न्यूट्रास्यूटिकल, आजकल तो फैशन है, एवरीबडी इज सेलिंग बॉटल्स भर भर के। तो अगर आप उसको रेगुलरली खा रहे हो, क्या वो इनफ डोज है जो आपको चाहिए? क्योंकि ये जो मल्टीविटामिन वाली जो टैबलेट्स होती है उसमें सब कुछ थोड़ा 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 होता है, उसमें 5 mcg है, आपको चाहिए 50 मिलीग्राम। तो आप तो 101 मिलियंथ ऑफ व्हाट नीडेड खा रहे हो ना। तो न्यूट्रास्यूटिकल इज हेल्पफुल टिल यू आर ओके। जब तक आप नॉर्मल हेल्थ पे चल रहे हो तो आप रोज एक वेल वुमन या वेल मैन या जो भी एक खा रहे हो, दैट इज ओके। लेकिन जब आप प्रॉब्लम में पड़ने लगे तो तब वो खाली न्यूट्रास्यूटिकल से काम नहीं चलेगा, उसमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो फिर वही बात कि वो है सप्लीमेंट, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो खाने का सब्स्टिट्यूट नहीं है, वो जो आप लैकिंग हो उसमें सप्लीमेंट कर रहा है। और सप्लीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपका जो मील प्लान है या जो आपकी डाइट हैबिट्स हैं वो आपके अंदर उतनी अच्छी नहीं थी, या आपके पास इतना वक्त नहीं है, या एक्चुअली इट्स पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल ओनली। 2 टाइम तो रोटी मैं भी नहीं खा सकती, तो कहीं ना कुछ वो हो जाता है। इसमें न्यूट्रास्यूटिकल्स डेफिनेटली इट शुड बी इफ यू आर स्पेशली इन एन अर्बन लाइफस्टाइल जहां पर भाग दौड़ बहुत है, और जैसे मैंने आपको बोला कि स्ट्रेस जो है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, वो बहुत मार रहा है हम सबको, तो उसको कॉम्बैट करने के लिए न्यूट्रास्यूटिकल्स आर वेरी गुड। लेकिन जब न्यूट्रास्यूटिकल आप रेगुलरली ले रहे हो, और दूसरी एक तजवीज जो होती है वो ये होती है, हमेशा ब्रांड चेंज करो। एक डब्बा खाया उसमें 60 टैबलेट्स के करीब होती हैं, चेंज द ब्रांड। सी दैट थोड़ा बहुत उसकी वो फॉर्मुलेशन चेंज हो जाए। जैसे हम एक छोटी सी बात कहते हैं, किचन में जो आप कुकिंग ऑयल यूज कर रहे हो, 1 महीना सोया करो, वो 5 लीटर का खत्म हो जाए तो सनफ्लावर पे आ जाओ, फिर पीनट पे आ जाओ, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स बेनिफिट्स एंड एवरीथिंग गेट्स सैचुरेटेड। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप एक चीज, आपको रोज बर्गर खिलाऊं, आप उससे भी तंग आ जाओगे, तो बॉडी जो है वो सैचुरेट हो जाती है। तो इसलिए न्यूट्रास्यूटिकल्स बिल्कुल अहम है और हमारी स्ट्रेसफुल लाइफ में बहुत अहम है। पर कहाँ जाके उस न्यूट्रास्यूटिकल को प्योर सप्लीमेंट में चेंज करना है वो पता होना चाहिए। ओके डॉक्टर, सो लाइक ब्लाइंडली ना लेके हमें प्रेस्क्राइब करके ही यूज करना चाहिए। देखो रूटीन में चल रहा है ना मोना, सब कुछ जब तक ठीक चल रहा है तो ठीक चल रहा है। और हम्म। न्यूट्रास्यूटिकल आज की जिंदगी की अहमियत है। अगर आपको बॉडी एक हो रहा है तो आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए। अगर जैसे हम बीच में बोलते हैं कि हेयर के और हेयर स्किन और नेल के लिए जिंक बहुत अच्छा है, पर ऐसा नहीं है कि वो रोज मुट्ठी भर की गोली खा ली। तो उसमें तरीका होना चाहिए कि आपने 2 महीने जिंक लिया, उसके बाद जिंक छोड़ के फिर आपने 1 महीने मैग्नीशियम लिया, फिर उसके बाद B12 लिया, तब तक बरसात का मौसम आ गया तो B7 लिया। तो किसी भी आप अपने फिजिशियन से एक चार्ट बनवा सकते हैं कि भाई अब मैं क्या लूं इस मौसम में क्या। और दिल्ली जैसे और नॉर्थ इंडिया में तो 4 सीजन है, तो जो चीज आज 45 डिग्री में पच रही है वो 2 डिग्री में नहीं पचेगी। जी yeah, exactly. Very informative, doctor. So, doctor, like now we have talking about nutraceuticals. So there are also some herbal and plant हम्म, extract and phytoconstituent. So what are they, and can they be used in the management of hair loss or alopecia, like you said? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेप सीड इज द अमेजिंग सोर्स एंड मिलेट सीड ऑयल। आजकल तो मिलेट्स का जमाना है जिन्हें हम भूल गए हैं। तो ग्रेप सीड एंड मिलेट्स ये दोनों इनके अंदर इतनी एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, ये आपकी मिनिचराइजेशन को खत्म करते हैं। इनके अंदर होता है एक मेलैक्टिन करके एक एंजाइम है, जो आपको मिलेट सीड ऑयल से भी मिलेगा और ग्रेप सीड से भी मिलेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी है, देखिए जब हमारे पास कोई भी, हम कोई टैबलेट दे रहे हैं, न्यूट्रास्यूटिकल हम दे रहे हैं, जो हम प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उसका सोर्स हम देखते हैं
कि क्या वो बिल्कुल सिंथेटिक है और हैज इट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम नेचर। जाहिर बात है, जब आप नेचर से लोगे तो उसमें 10 फायदे और आपको साथ में मिलेंगे। तो जिस चीज के लिए वो आ रहा है उस पे भी वो काम करेगा। तो यहाँ पर ग्रेप सीड ऑयल, मिलेट सीड ऑयल, दे आर द बेस्ट सोर्सेज ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल एंड टू रिड्यूस दैट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यू नो, जब आपकी बॉडी हील होगी तो बाल तो अपने आप हील होगा। तो डेफिनेटली ग्रेप सीड एंड मिलेट सीड ऑयल आर वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइटोस्यूटिकल्स बेसिकली। Okay, doctor. So then, like, there are also like omega-3 fatty acids. So many are there. Do they promote hair growth? जी, दे डू प्रोमोट हेयर ग्रोथ, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बिकॉज दे इंक्रीज द ऑयल सर्कुलेशन, ऑयल प्रोडक्शन। और खासकर जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि सम पीपल व्हेन दे आर टेकिंग एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स तो उनके बाल बहुत ड्राई हो जाते हैं, बहुत फ्लेकी हो जाते हैं, गिरने लग। क्यों? क्योंकि वो ओमेगा 3 को भी ब्लॉक कर रही है। तो जब आप ओमेगा 3 लोगे तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6, खाली ओमेगा 3 की कहानी नहीं है, यहाँ पर लिनोलिक एसिड की भी है, लिनोलेनिक एसिड की भी है। इसीलिए जब हम बोलते हैं कि सर्दी में आपको 6 बादाम रोज खाने चाहिए और वो भी क्रश करके चबा के खाने चाहिए। हम हिंदुस्तानियों को आदत है भिगो के खाने की, उसके चक्कर में हम बहुत सारी चीजें उतार के फेंक देते हैं। तो अगर आप चबा के खाओगे तो उसमें लिनोलिक एसिड जो है वो सिक्रीट होता है। तो यही तो फॉर्मुलेशन है एक अच्छी स्कैल्प की, एक अच्छी ऑयल सर्कुलेशन की। तो सारी कहानी तो यह है कि लोकली आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे। तो ओमेगा 3, ओमेगा 6, लिनोलिक डेफिनेटली। पर फिर वही मैं बीच बीच में वो डिस्क्लेमर या बोलिए कि एक वो देती रहती हूँ, अपने आप मुट्ठी भर के ना खाइए कि वो ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, ये भी खा लिया, नहीं। देयर हैज टू बी अ सीक्वेंस। तो अगर आपको नहीं समझ आ रहा, आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछेंगे, जो आपका फैमिली फिजिशियन है वो भी आपको बता देगा कि भाई ये खाइए, फिर ये खाइए। जैसे सर्दी में हम लोग जब कोलेजन देते हैं खाने के लिए, जो हम स्किन और हेयर नेल के लिए बहुत देते हैं, वो हम सर्दी में देते हैं। बिकॉज देखो, एक हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसे हम ठंडी तासीर और गर्म तासीर बोला जाता है। गर्मी में ठंडी तासीर के खाने खाते हैं ना, हलवे पराठे तो नहीं खा रहे हैं, बिकॉज वो पच नहीं रहा है, वो एब्जॉर्ब होने की एनर्जी नहीं है, वो शरीर बेचारा अपने को ठंडा रखते रखते ही उसकी जान निकल रही है। तो अगर आप इस वक्त ओमेगा 3 और ओमेगा 6 खाओगे, वो नहीं एब्जॉर्ब होगा, आप खाओगे वो ऐसे के ऐसे ही निकल जाएगा। तो ये टाइम है आपका वाटर सॉल्युबल चीजों को खाने का, ये टाइम है आपका विटामिन B12 खाने का, विटामिन कॉम्प्लेक्स खाने का, विटामिन सी खाने का। आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी जो है वो वाटर, विटामिन बी एंड सी आर वाटर सॉल्युबल विटामिन, ADEK आर ऑयल बेस्ड विटामिन। तो जो ऑयल बेस्ड विटामिन होते हैं वो सर्दी में खाए जाते हैं, जो वाटर बेस्ड होते हैं वो गर्मी में खाए जाते हैं। इतनी बेसिक नॉलेज हम सबको गेन करनी पड़ेगी, बिकॉज वी नीड सप्लीमेंट्स एंड वी हैव टू नो व्हेन टू टेक व्हाट टू गेट इट्स बेनिफिट। Okay, doctor. I think ये वाला show बहुत important है because I think we are gaining too much of knowledge. Like because I didn't knew that even oil soluble and water soluble vitamins are also बिल्कुल। important for मैं it. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग यू ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, वो सब कर रहे हैं। कब करो इज मोर इम्पोर्टेंट टू गेट द बेनिफिट। आज तुम 45 डिग्री में ओमेगा 6 खा लो, कुछ नहीं होगा। आज की जरूरत है जिंक, आज की जुलाई में जरूरत होगी बायोटिन की। जब मॉनसून आता है तो उस टाइम हेयर फॉल बढ़ जाता है, बिकॉज हर सीजन में हर कॉन्टिनेंट का अपना एक टीलोजन सीजन होता है, बाल गिरने का सीजन होता है। तो अगर नॉर्मली मेरे 30% बाल गिरने वाले फेज में हैं तो मॉनसून में वो 70% हो जाएंगे। आप ऐसे करोगे आपके हाथ में 10 बाल आ जाएंगे, लेकिन आप हर बाल को उठा के देखो, उस पे एक व्हाइटिश रूट होगी, व्हाइटिश शीत होगी, जिसका मतलब ये है कि वो बाल की जिंदगी खत्म हो गई, वो बाहर आ गया। 1 महीने में नए बाल शुरू हो जाएंगे। दिक्कत जब होती है जब वो गिरे हुए बाल में ब्लैक डॉट होता है। जब वो ब्लैक डॉट होता है तो उसका मतलब है कि उगने वाला बाल जो है, जिसकी अभी जिंदगी बाकी थी, वो गिर रहा है। तो अब जुलाई आते ही मानसून सीजन है, सबका हेयर फॉल होगा। तो उस सीजन में आप हेयर फॉल के लिए कम काम करोगे, आप रीग्रोथ के लिए ज्यादा करोगे। कि जब ये टीलोजन वाले बाल निकल जाएं तो जो हेयर रूट्स खाली हो गई हैं, वो देखो,
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हर बाल की अपनी एक जिंदगी होती है, 3 से 4 साल होती है, और हर आदमी का एक जेनेटिक क्लिक होता है, उसके बाल कितने लंबे उगेंगे। मैं अगर बाल ना कटाऊं तो ऐसा नहीं है कि मेरे बाल घुटने तक चले जाएंगे, मेरी एक जेनेटिक लेंथ है, वो यहाँ तक आएंगे, उसके बाद वो बाल गिर जाएगा और नया बाल आना शुरू हो जाएगा। जब लोग आके मेरे पास बोल देंगे मैम इतने लंबे बाल थे वो अब पतले हो गए, भाई वो तुम्हारे 20 साल पुराने बाल थे, और आज जो बाल उग रहा है वो छोटा छोटा जो नजर आ रहा है वो 20 साल में वहां पहुंच जाएगा। पर वो 20 साल वो अपनी पूरी लाइफ करके जाएगा ना। तो हेयर इज अ साइकिल। तो हेयर के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर ये हो रहा है, ठीक है, मानसून में सबको पता है बाल गिरते हैं, लेकिन जो जुलाई अगस्त में बाल गिर रहे हैं उनकी सितंबर तक रिकवरी हो जानी चाहिए। सो उस वक्त तक अगर नहीं हुई तो देन यू नीड टू गो एंड सी अ डर्मेटोलॉजिस्ट। एंड as I was saying, B7 biotin is the go-to vitamin for monsoon months because it replenishes, it increases the hair circulation। तो वो जो सर्कुलेशन बढ़ेगी वो आपकी रिपेयर में हेल्प करेगी। बाल को कोई नहीं चिपका सकता, जो अपनी जिंदगी खत्म कर चुका है, वो रूट शीट से निकल चुका है, उसको हमें वापस नहीं चिपकाना है, वो नहीं चिपकाना चाहते। हम नया बाल जो है उसकी हेल्थ की तरफ देखना चाहते हैं। Okay, doctor. Very interesting. I got to know very interesting point. Like seasonal fruit, seasonal vitamins are also there. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। Okay, doctor. So, like, doctor, there are so many nutrients, so micro, macro nutrients. So, like, can you please enlighten us today? Like, what is the role of these micronutrients are in our hair health? बिल्कुल। देखिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होता है जिसकी जरूरत भी माइक्रो क्वांटिटी में है, पर वो खाने में भी माइक्रो क्वांटिटी में है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जिंक। जिंक जो है हमारी हेयर स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जैसे हम खाना खाते हैं, हम पका पुकू के खाते हैं, सलाद भी हमारा खीरा टमाटर होता है, वो जिंक नहीं पहुंचता है कहीं भी। तो इसीलिए हमें, खासकर जो हम अर्बन एरियाज में रहते हैं, देखो, जिंक की ड्रॉप से लेके कैप्सूल तक आता है। तो जिंदगी में पैदा होने से लेकर आपके अडल्टहुड तक आपको जिंक की जरूरत है। तो जो बिल्कुल न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं, जो ब्रेस्ट फेड होते हैं, उनमें जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है और स्किन बिल्कुल फ्लेक करने लगती है। उनके लिए हम ड्रॉप्स वो प्रिस्क्राइब करते हैं। जो थोड़े बच्चे बड़े हो गए उनके लिए सिरप्स आ जाते हैं, फिर डिस्पर्सिबल टैबलेट्स आ जाती हैं, फिर उसके बाद कैप्सूल्स आ जाते हैं। तो ये वो चीज है, वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपको जरूरत है। देखिए, मैक्रो का मतलब है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ऑयल, जो आपका 5 ग्रुप्स ऑफ फूड्स हैं वो तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। दिक्कत आजकल माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हो रही है बिकॉज वो हमारी डाइट में इनफ नहीं है। उसका एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन ये है कि आप दिन भर में कुछ भी खाइए, जो खाना है खाइए, लेकिन दिन में एक हेल्पिंग, एक 100 ग्राम कटोरी सीजनल फ्रूट की आपको खानी है। सीजनल फ्रूट आजकल मेलन, वाटरमेलन, आम भी ले लीजिए कभी कभी। आम इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ, ऑब्वियसली विटामिन सी तो है, ये आयरन का भी बहुत अच्छा सोर्स है। तो रोज जो है वो, जो जैसे 5 बजे की एक स्नैक टाइम होता है, बच्चे भी जैसे स्कूल के बाद आके उठते हैं, ये अपनी आदत में शुमार कर लीजिए। तो ये जब आपकी आदत बन जाएगी, मैं सलाद बोलूं, सलाद खा लीजिए, यहाँ पर पता नहीं सलाद पत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। फ्रूट्स तो हम सबको मिलते हैं ना, फ्रूट्स हम सबको मैसर है। हम एक दिन केला खा लेंगे, एक दिन आम खा लेंगे, अब सर्दी में हम एप्पल खा लेंगे। तो आपकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, माइक्रो का मतलब ही माइक्रो है ना, तो वो इनफ पूरी हो जाएगी। इसी तरह जैसे आयरन के साथ होता है, आप आयरन कितना भी खा लीजिए, आप पालक का सूप पी ले, आप अनार खा ले, उतनी नहीं पूरी हो पाती जितनी हमारी जरूरत है। और क्या होता है कि आयरन जब आप खा रहे हैं, जितना भी आप खा रहे हैं, वो डाइवर्ट होता है। जैसे मैंने बोला कि हीमोग्लोबिन आपका, अगर मैं आज अब एक हेयरफॉल वाले पेशेंट का ब्लड टेस्ट कराऊं तो उसका हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, वो बोलेगा मैम हीमोग्लोबिन तो मेरा 12 और 13 है। फेरेटिन एक स्टोरेज आयरन है, जहां से हेयर अपनी एनर्जी लेता है, वो 0 होता है। क्योंकि आप जो भी जितना खा रहे हैं, आप खा ही कम रहे हैं, तो और जितना खा रहे हैं वो आपको जिंदा रखने में आपके हीमोग्लोबिन में चला गया, तो आपके स्टोर तो है ही नहीं, तो आपको बाकी जगह तो मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कई बार आई इंसिस्ट कि मैं लोगों के पीछे पड़ के लिटरली, आईवी आयरन जो है एक बहुत अच्छा आयरन आइसोमाल्टोसाइड होता है, एक इंजेक्शन लग के 6-7 साल तक का आपका पूरा वो कोटा पूरा हो जाता है।
आप कितना भी आयरन खा लें वो आपको एब्जॉर्ब नहीं होता। फिर वही बात कि वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब यही है कि थोड़ा सा चाहिए और थोड़ा सा ही उसकी जरूरत है, लेकिन वो खाने में भी थोड़ा सा ही है। तो आप बोलेंगे जी रोज आप स्प्राउट खाएंगे, आप एस्पैरेगस खाएंगे, तब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट पूरा पड़ेगा। अगर तरीका वही है, जैसे मैंने बोला गर्मी में आजकल ये होना चाहिए कि जून जुलाई में 2 महीना एक कैप्सूल जिंक का रोज खा लीजिए, तो साल भर आपका कोटा पूरा हो जाए। Okay, doctor, very interesting. Well, IV injections are also important if you दे are. वेरी, तो आपके स्टोर को बाईपास, अगर आप खा रहे हो ना, तो वो एब्जॉर्ब होके वो ब्लड के थ्रू जो जा रहा है वो सिर्फ असेंशियल चीजों में जा रहा है, मतलब जो बिल्कुल लाइफ वाली चीजें हैं। स्टोर्स में जाने के लिए उतना वो एब्जॉर्ब हो ही नहीं रहा है। तो आपको स्टोर भरने के लिए लिटरली ट्रक भर के सामान लाके स्टोर में डालना पड़ेगा, तो तब वो स्टोर आपका भरेगा। Okay, doctor. So, doctor, like, is it required to take these nutrients as per some guidelines, like to take these nutrients as per like RDA requirement, or like where we can get these, requirement, or we can just take blindly and pop it. नहीं, हर चीज की एक रिक्वायरमेंट है मोना, और मेल और फीमेल का भी थोड़ा सा फर्क होता है, बिकॉज उसमें हम जैसे टेस्टोस्टेरॉन ईस्ट्रोजन वाला फर्क हो जाता है, तभी हर चीज का एक वुमन वर्जन होता है, उसका एक मेन वर्जन होता है। जो मल्टीविटामिन नॉर्मली हैं, जो Mhm. आपको वेल वुमन या वेल मेन, या मैं नाम ले रही हूँ, पर आपको जो आजकल जो चलन है कि आप अमेजोन से भी खरीद रहे हो और इधर से भी खरीद रहे हो, उसमें नॉर्मली आरडीए इतना ही होता है कि वो आपको ठीक रखेगा, टॉक्सिक नहीं करेगा। जब आप अलग से पिल्स खाते हो जैसे न्यूरोबियन 4 डे, वही फिर यहाँ पर बात आ जाती है वाटर बेस्ड एंड ऑयल बेस्ड की। वाटर बेस्ड जो भी न्यूट्रिएंट है, चाहे वो जिंक है, चाहे वो विटामिन सी है, वो कभी टॉक्सिसिटी कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक्स्ट्रा होगा तो वो यूरिन के थ्रू निकल जाएगा। तो आप शायद उसको वेस्ट कर देंगे, पर वो कभी आपको नुकसान नहीं करेगा। वहीं पर विटामिन ए, विटामिन ई, ओमेगा, सबसे बड़ी बात तो ओमेगा 6 और ओमेगा ई की है, वो ऑयल बेस्ड है, तो वो जाके स्टोरेज में बैठ जाएगा। तो अगर आपने वहां पर ज्यादा खाया, अंधाधुंध खाया, तो तब वहां, मैं बहुत लोगों को जानती हूँ जो विटामिन ई, हम तो फिश ऑयल रोज खाते हैं। तो क्यों खाते हैं आप फिश ऑयल रोज? क्योंकि वो कहीं ना कहीं जाके स्टोर हो रहा है। तो हर चीज का ब्रेक जरूरी है। 2 महीना खाइए, 1 महीना ब्रेक दीजिए, 2 महीना खाइए, 1 महीना ब्रेक दीजिए, ताकि जो आपका एक्स्ट्रा हो गया वो बॉडी 1 महीने में यूज कर ले, फिर उसको दोबारा शुरू कर दीजिए। तो ऑयल बेस्ड चीजों की टॉक्सिसिटी हो सकती है, तो उसके लिए आपको बहुत स्पेसिफिकली आरडीए अलाउंस आपको पता लग जाएगा। आप किसी भी नेट को खोलेंगे, आप वो बॉटल पे ही लिखा हुआ होगा। उसे ज्यादा कंज्यूम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब टॉक्सिसिटी कर लेना मुश्किल होता है। दिक्कत जब होती है जब आपने ध्यान ही नहीं दिया ना, वो रोज एक फिश ऑयल खा रहे, क्यों खा रहे? Yes, इसलिए doctor. तो आरडीए है, हर चीज की है, और आरडीए इज रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस। तो हर चीज का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है, उसका मतलब ये नहीं है कि रोज वो हर चीज का आरडीए होना चाहिए। किसी दिन इसका चला गया, किसी दिन इसका चला गया, बॉडी को एक न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। सेंसलेस न्यूट्रिशन के बजाय सेंस यूज करके न्यूट्रिशन लेना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, सेंसलेस तो आप बस फैक्ट्री में बस झोंक ये रहे हो टेक वो। इट, टेक इट, टेक इट, या हाँ, वो एब्जॉर्ब तो हो नहीं रहा। अब वही बात है कि आज अगर मैं बोलूंगी जी बादाम खा लो, कल को एक्ने भी हो जाएंगे, कल को स्किन बर्न भी करने लगेगी, तो गर्मी में गर्मी की चीज खाओ ना, तरबूज खरबूज खाओ। वेरी इंटरेस्टिंग डॉक्टर। तो डॉक्टर, अब तो हमने हेयर लॉस की बात कर ली, ट्रीटमेंट की बात कर ली, न्यूट्रिशन की बात कर ली। एक दूसरी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन है वो है डैंड्रफ। सो क्या हाँ, डैंड्रफ हेयर फॉल कॉज कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डैंड्रफ का मतलब है कि नॉर्मली जैसे हमारी स्किन के सेल झड़ते रहते हैं, रोज यहाँ से भी झड़ रहे हैं, यहाँ से भी झड़ रहे हैं, वो एक एक सेल झड़ रहा है, आपको नजर नहीं आ रहा। जब वो सेल फ्लेक्स बन के झड़, माने वो एक साथ इकट्ठा हो गए, तो अब वो आपके यहां भी नजर आने लगा, वो सर में भी इरिटेशन करने लगा। और अगर आपने उसका उस वक्त इलाज नहीं किया, तो उसमें फिर फंगल इन्फेक्शन होने लगा, तो फिर अब यहाँ पर और ज्यादा इन्फ्लेमेशन होने लगी। तो अगर आपकी स्किन, अल्टीमेटली तो बालों को स्किन ने पकड़ा हुआ है ना, तो अगर आपकी स्किन ही लूज है, तो वो तो बाल ऑटोमेटिकली लूज हो जाएगा, और फिर आप जो खुजाते रहेंगे वो एक्शन से और ज्यादा होगा।
डैंड्रफ दो तरह के होते हैं, एक कुछ लोगों को ड्राई डैंड्रफ होता है, कुछ लोगों को ऑयली डैंड्रफ होता है। जिनकी ऑयली स्किन होती है या टीनेजर्स, जैसे टीनेजर्स में सेबेशियस ग्लैंड एक्टिव होना शुरू होता है, तो फेस है, वी ऑफ चेस्ट है, अपर आर्म है, तो वही ग्लैंड सर में भी है, तो दे हैव मोर ऑयली हेयर। तो उनका, देखो, ऑयल को हटाना जरूरी है। ऑयल क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? हमारे बाल एक दूसरे से मैट नहीं होते, अलग अलग है ना एक एक बाल, क्यों नहीं वो ऐसे जुड़ गए? वो इसलिए क्योंकि जो जड़ में जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है और वो पूरे बाल को कर एक दूसरे को कोट कर रहा है, तो दे डोंट गेट मैटेड टुगेदर। लेकिन अगर यही ऑयल एक्स्ट्रा रहेगा तो ये वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनने का बायस बन जाएगा। तो जिसके ऑयली बाल हैं उसे धोना पड़ेगा, देयर इज नो 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 अदर ऑप्शन। यही ड्राई डैंड्रफ वाले का है। ड्राई डैंड्रफ के साथ क्या है कि उसके सेल जुड़ ही नहीं रहे, वहां ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यहाँ पर फ्लेक्स बन रहे हैं, तो वो निकलते चले जा रहे हैं। फ्लेक्स अगर आप नहीं हटाएंगे तो वो एक आपका ग्राउंड बन गए वहां पर फंगस होने का। तो डैंड्रफ का पहला उसूल, आप जितने भी बाल धो रहे हैं, अगर आप हफ्ते में 3 बार धो रहे हैं उसको ज्यादा कर दीजिए, अगर आप रोज धो रहे हैं तो उसको फिर सुबह शाम कीजिए। और खासकर जैसे मैंने बोला था, एक्सरसाइज वाले बच्चे और एक्सरसाइज जो जिम में जाते हैं या स्विमिंग जो होती है, आजकल तो स्विमिंग का सीजन है, तो बच्चे सब स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। अब स्विमिंग पूल का क्लोरीनेटेड वाटर है, आपके बालों में लग रहा है, आपने सिर्फ एक ऊपर पानी शावर किया और घर आके खोल के बैठ गए, थोड़ी देर में वो सूख भी गए। विद इन अ वीक और टू यू विल सी के वो क्रंची हो गए, बिकॉज वो क्लोरीन जो है वो आपके बालों को कोट करती चली गई और आपका नॉर्मल टेक्सचर खत्म हो गया। तो यहाँ पर, और देखो, शैम्पू भी अलग अलग आते हैं। जैसे हम लोगों को ना खपत है, मेरे तो ऑयली बाल हैं तो मैं तो शैम्पू फॉर ऑयली हेयर यूज करूंगी, मेरे ड्राई बाल हैं, शैम्पू फॉर ड्राई। जब सर्दी है, जब आप गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हो, जब मौसम बिल्कुल सूखा है, तब आपके बाल ड्राई हो सकते हैं ना। आज 45 डिग्री में पसीने में सर भरा हुआ है, तो फिर वो शैम्पू जो आप जब सर्दी में यूज कर रहे थे वो आप गर्मी में कैसे यूज कर सकते हो? तो आपको यूज करना है शैम्पू फॉर नॉर्मल। इन सब शैम्पूज में फर्क क्या होता है? इन सब शैम्पू में फर्क होता है कंडीशनर लेवल का। ये 2 in 1 चीज जो बनी हुई है ना, कि शैम्पू प्लस कंडीशनर, दोनों काम अलग अलग कर रहे हैं, पर वो सहूलियत के लिए ये इजाद किया गया। तो आइडियली आप बालों के लिए एक नॉर्मल सा माइल्ड, चाहे वो सल्फेट फ्री हो, ये सब ये ना ये मॉडर्न डे के खपते हैं, सल्फेट फ्री यूज कर रहे हैं, सल्फेट फ्री तो यूज कर रहे हैं, पर उसमें सल्फेट जो है वो सिर्फ झाग बनाता है, क्लिंजर है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा। माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे जब आपने हाथ किया और आपका हाथ अटक रहा है बालों में, तब आपको कंडीशनर की जरूरत है, जो ज्यादातर सर्दियों में पड़ती है, बिकॉज हम गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं। गर्म पानी रॉब्स आर ऑयल, हेयर ऑफ ऑयल। तो तब आप हल्का सा कंडीशनर लेके उसको स्ट्रैंड्स पे लगाइए, उसको आपको सर में नहीं लगाना है, बिकॉज वो तो फिर ऑयली कर देगा। और अगर आपके बाल एक्सेसिवली ड्राई है, और जैसे कलर्ड बाल हैं, आजकल सबके कलर्ड बाल हैं, you have no option but to use color protecting shampoos and conditioner। जब आपने अपने बालों को कलर कर लिया तो उसका जो नॉर्मल प्रोसेस था, इकोसिस्टम था, कि ग्लैंड की बाल की जड़ में एक ग्लैंड है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जो आपके बालों को कोट कर रहा है, वो खत्म हो गया। तो अब आपको कलर प्रोटेक्टिंग शैम्पू और कंडीशनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अगर आपकी हेड हेल्थ सही रहेगी, जैसे हम बोलते हैं, देखो, डैंड्रफ ना कभी क्योर नहीं होता क्योंकि वो कोई डिजीज नहीं है, इट्स अ स्किन टाइप। So you have to learn how to deal with your skin type. So if you learn it, then you will be happy with it. Otherwise, you will keep on just आज ये लगा लिया, कल वो लगा लिया, एक डॉक्टर दूसरा डॉक्टर, क्योंकि जो आपको बता दिया गया है, जो आपको सूट कर रहा है, चिपक जाओ उससे। यस डॉक्टर। सो हेयर टाइप, स्किन टाइप के हिसाब से भी हमें शैम्पूज बिल्कुल यूज करने चाहिए। सो डॉक्टर, बिल्कुल लाइक बिल्कुल। आजकल एक और चीज है जो कि लाइक बहुत पुरानी चीज है हम जब भी स्ट्रेसफुल होते हैं या फिर हमारे बाल अच्छे नहीं होते, तो हमारी मम्मियाँ हमें हमेशा कहती है ऑयल से मसाज कर लो, अच्छे से ऑयल लगा के मसाज कर लो, खूब जोरों से मसाज कर लो। सो व्हाट डू यू थिंक, ऑयलिंग हेयर इज बैन और अ बूम? नहीं नहीं, ऑयल मसाज इज हेल्पफुल। ओके। ऑयल इज जस्ट अ जरिया टू रिड्यूस फ्रिक्शन। ऑयल का मॉलिक्यूल इतना बड़ा होता है कि मैंने वही बोला ना, आप स्किन को एक छन्नी नहीं है कि आप कुछ भी लगाओगे वो अंदर टप 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 जा रहा है, वो नहीं जाता। वो ऑयल की जो अहमियत है वो है कि अगर आप सूखे हाथ से मसाज करोगे 4 बाल तोड़ दोगे,
फ्रिक्शन से। तो अगर आप ऑयल से मसाज करोगे तो वहां पर फ्रिक्शन नहीं होगा, और यहाँ पर अहमियत है मसाज की। सो लाइट मसाज जिसे कहा जाता है, इट शुड बी अ सिंपल मसाज, इट शुड नॉट बी अ विगरस मसाज के आपके बाल आपके हाथ में आ गए। ऑयल की अहमियत है अकॉर्डिंग टू सीजन। ऑयल्स आर थिन ऑयल और थिक ऑयल। गर्मी में आप थिन ऑयल यूज करोगे जिसमें कोकोनट ऑयल, जैस्मिन ऑयल, कियोकार्पिन, क्लियर ऑयल्स, ये पतले तेल है। तो गर्मी में वैसे ही आपके पोर्स खुले हुए हैं, पसीना आ रहा है, यहाँ पर आप बादाम का तेल और जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल लगाओगे तो वो तो और वहां दाने और फुंसियां हो जाएंगे, बिकॉज वो पोर्स को ब्लॉक कर देगा। सर्दी में क्योंकि ड्राइनेस हो रही है स्कैल्प में, तो यहाँ पर आप थिक ऑयल यूज कर सकते हो। तो इंडिया में एक्चुअली नवंबर टू फेब इज द ओनली टाइम व्हेन यू कैन यूज द थिकर ऑयल्स। बाकी टाइम हमेशा थिन ऑयल होना चाहिए। एक जो हमारा, हम डर्मेटोलॉजिस्ट को वो रहते हैं हिंदुस्तान में ना, लगा के रात को बांध के सो गए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मकसद तो ऑयलिंग एक्शन का था। आप रात को ऑयल लगा के सोए हो, वो बह के यहाँ आएगा, तो ज्यादातर लोगों को ऑयल एक्ने हो जाता है। तो आप सर धोने से आधा घंटा पहले ऑयल लगाइए। उस ऑयल को और अच्छा एब्जॉर्ब करने के लिए अगर आप बाल बांध के उस पे एक हॉट टॉवल बांध लें, तो वो जो ऑयल है वो इन इन स्ट्रैंड्स में भी चला जाएगा, वो एक कंडीशनर का इस्तेमाल करेगा। हिंदुस्तानी संस्कृति में कंडीशनर नाम की चीज नहीं थी, ये हमारा वेस्ट से आया है। तो हमारा जो नेचुरल कंडीशनर था वो था तेल। जब हम ऑयल लगा के बैठते थे और उसके बाद जब हम सर धोते थे, कुछ निकल जाता था, कुछ रह जाता था, तो वो हमारे बालों की कंडीशनिंग करता था। और हमारा जो हेयर टेक्सचर है, हमारा जो थिक हेयर टेक्सचर है, हमारा जो इंडियन हेयर है जेनेटिकली, वो मोटा है। तो वो कर्ली भी है तो वो मोटा है, तो इट रिक्वायर्स सम नरिशमेंट। तो ऑयलिंग, जैसे मैं खुद मानूं, मुझे ऑयलिंग की जरूरत नहीं पड़ती, तो मेरा काम कंडीशनर से चल रहा है। पर अगर आप ऑयल से उसी काम को कर सकते हो, पर ये मत सोचना कि वो ऑयल अंदर जाके कुछ ग्रोथ कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो सर्कुलेशन बढ़ा रहा है, जाहिर ही बात है। अगर आप कहीं भी मसाज करोगे तो आराम तो मिलेगा ना। तो ऑयलिंग मना नहीं है, विगरस ऑयलिंग मना है। और नहाने से, सर धोने से आधा घंटा पहले कीजिए, ओवरनाइट करके मत छोड़िए बात। ओके डॉक्टर, सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को आज पहली बार पता चला कि सीजनलिंग, सीजन के हिसाब से भी ऑयल ऑयल, चूज करना बिल्कुल। चाहिए। तो वही जो देखो, सीजन के हिसाब से खा रहे हो, पोर्स, स्किन का जो है ग्रेडियंट है, इन हम्म, टू आउट या आउट टू इन। हम्म, सर्दी में सब कुछ बाहर से अंदर जा रहा होता है। हम्म, जो भी लगाओगे फटाफट क्रीम भी अंदर जाएगी, लोशन भी अंदर जाएगा, जो खा रहे हो वो भी अंदर जाएगा, बिकॉज बॉडी नीड्स एनर्जी। हम्म, गर्मी में उसको ठंडक लानी है। बाहर हम्म, 45 डिग्री टेम्परेचर है, हम हॉट ब्लडेड एनिमल है, 37 डिग्री पे चलते हैं। हम्म, कैसे चल रहे हैं, वो ठंडा कैसे हो रहा है? हम्म, बिकॉज वी आर इवेपोरेटिंग, पसीना आ रहा है, चीजें निकल रही हैं, वो हवा में जा रही हैं। तो बाहर कुछ भी हो, अंदर हमारा वही हाल है। हम हम्म, क्रोकोडाइल और सांप नहीं है कि ठंड में जम गए और गर्मी में उबल गए। तो हम्म। ये सब जब बॉडी कर रही है, तो उसमें उसके मैकेनिज्म्स को हेल्प करना सीखो ना। लॉजिक चाहिए है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स जस्ट प्लेन लॉजिक। Yes, doctor, very interesting. Doctor, so doctor, can you give us some important tips for healthy hair? बिल्कुल। सबसे पहली बात कि अपने खाने पीने का देखो, हेयर इज योर आईना टू व्हाट यू आर। आपकी हेल्थ क्या है, मेंटल हेल्थ क्या है, फिजिकल हेल्थ क्या है, और आपके खाने पीने का क्या है। तो प्लीज अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक है, देयर इज स्ट्रेस, जो न्यूट्रास्यूटिकल है उसे लेने में कोई नुकसान नहीं है। लेकिन 1 महीना लीजिए, 1 महीना रोक दीजिए, फिर 1 महीना ले लीजिए, कंटिन्यूअसली किसी भी चीज को मत लीजिए। अपने हेयर पे दया कीजिए, उसको रगड़िए मत। जब आप नहा के आते हैं तो मत उसे तौलिए से रगड़िए, मत उसे वो कीजिए। एक टॉवल, ड्राई, आजकल तो बड़े अच्छे माइक्रोफाइबर टॉवल आ रहे हैं, उसको बांध लीजिए, वो पानी सोख लेगा। उसके बाद खोल के हाथ से इस तरह कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हेयर जब सर्दी में खासकर, बिकॉज क्या होता है कि सर्दी में बाल सूखते नहीं है, वो एक नमी सी रह जाती है, तो यहाँ पर आपको फिंगर ड्राइंग की आदत होनी चाहिए। और अगर आप हेयर ड्रायर से सिर्फ फिंगर ड्राई कर लेते हैं, आप अपनी जड़ को साफ कर लेते हैं, वो हेल्पफुल है, वो नुकसानदायक कतई नहीं है। ब्लो ड्राइंग नुकसानदायक है, बिकॉज वो सूखे बालों को आप ब्लो कर रहे हो। देखिए, ये सूखा, ये एक प्रोटीन है, इसको अगर आप वो उससे आप आयरन से बर्न भी हो जाता है ना। क्यों बर्न हो जाता है? क्योंकि वो प्रोटीन है, वो जल जाता है। तो अगर आप ज्यादा एक्सेसेस कर रहे हैं अपने बाल पे, तो वो कहीं ना कहीं अपनी वो छोड़ देगा। उसके अलावा
सीजनल चेंजेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मॉनसून में बाल गिर रहे हैं तो आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 2 महीने हो गए हैं और तब भी आपको लग रहा है कि आपके बाल नहीं वापस आए, तो यू हैव टू कंसल्ट अ डॉक्टर, बिकॉज कई बार वो आपके बस का नहीं होता। You need the holistic treatment for it to be normal. Then you have to know your shampoo, you have to know your conditioner, you have to change according to the season. आप सर्दी में क्रीम लगाते हैं, गर्मी में लोशन लगाते हैं, तो वही शैम्पू आप सर्दी और गर्मी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आप अपने ना नॉर्मल डॉक्टर से भी पूछेंगे ना, पूछने की भी जरूरत नहीं है, गूगल ही कर डालो, तो वो भी आपको जवाब दे देगा कि अपनी हेयर हेल्थ के लिए क्या करना है। कोशिश करके वुडन कोम्स का इस्तेमाल कीजिए, प्लास्टिक के कॉम्ब बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं आजकल। हम लोग ना बड़ी पोल्यूटेड सी एनवायरनमेंट में रहते हैं, तो बहुत सारे चार्जेस चारों तरफ भी रहते हैं। उस दिन आंधी आई तो सारी धूल मिट्टी आ गई, तो इन सब के से थोड़ा सा बचने के लिए अगर आप उन चार्जेस को कम कर दें तो आपकी हेयर हेल्थ बहुत ज्यादा बेहतर रहेगी। लड़कों के लिए मैं तीसरी बार बोल रही हूँ, लेकिन यंगर बॉयज प्लीज 17 to 22 अपने बालों का ध्यान रखो, बिकॉज यही वक्त है जब हम तुम्हारे बालों की जिंदगी को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। तो बी काइंड टू योर हेयर, नो व्हाट योर हेयर टाइप इज, योर हेयर विल बी योर क्राउनिंग ग्लोरी ऑलवेज। Yes, doctor, this discussion was very informative. I'm sure our viewers would be benefited by it. So, doctor, can we take some live audience questions if you allow? बिल्कुल बिल्कुल, आई विल बी मोर देन ग्लैड। Hi, doctor. I'm also from New Delhi. Can you please suggest that we start using minoxidil? ये पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए या खुद से भी यूज कर सकते हैं? देखो, मिनॉक्सिडिल की जो रेंज है वो 2% फॉर फीमेल्स है एंड 5 to 10% फॉर मेल्स है। मिनॉक्सिडिल अपने आप यूज करने में कोई नुकसान नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी प्रिपरेशंस अलग अलग आती हैं, इन द सेंस कि वो अल्कोहल बेस्ड प्रिपरेशन भी है, वो अक्वा वाटर बेस्ड प्रिपरेशन भी है। तो अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज किया, और पहली बात, आइडियली मिनॉक्सिडिल की डोज है ट्वाइस अ डे, जो कोई नहीं कर पाता क्योंकि वो सारा दिन थोड़ी दवा लगाते रहेंगे। तो अगर आप वंस अ डे कर रहे हो, 8 हफ्ता आप उसको, किसी भी चीज को मैंने बोला 2 महीना, 8 हफ्ता, बाल गिर रहे हैं तो भी 8 हफ्ता, मिनॉक्सिडिल लगा रहे हो तो भी 8 हफ्ता, लेकिन उसके बाद अगर नहीं रिजल्ट आ रहा है तो देन यू हैव टू मूव अहेड। तो हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली हिंदुस्तान में ओवर द काउंटर ओटीसी चीजें मिल जाती हैं, विच इज ओके, पर 2 और 5% से ज्यादा मत लीजिएगा। बाजार में 7.5 भी है, फिनेस्ट्राइड के साथ भी है। फिनेस्ट्राइड की बात हमने नहीं की, फिनेस्ट्राइड्स आर टैबलेट्स जो आपके एंड्रोजन्स को कम कर देती हैं। तो वो जाहिर ही बात है, जब वो टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो बाल गिरने कम हो गए, पर दे डिक्रीज योर सेक्सुअल पावर्स, योर लिबिडो, योर मूड, योर, दे कैन कॉज डिप्रेशन। तो यू हैव टू बैलेंस इट आउट, यू नो, कि जिंदगी में क्या जरूरी है, क्या करना है। प्लेन मिनॉक्सिडिल यस यू कैन यूज इट, पर रिजल्ट आने में 8 हफ्ते लगेंगे, और क्या चाहते हो ये पता होना चाहिए। Okay, doctor, very interesting. Doctor, another question I think I also want to know. Doctor, आपका हेयर और आपकी स्किन इतनी अच्छी क्यों? आप कोई अलग से कुछ और यूज करते हो क्या? प्लीज बताएं। मैं अलग से कुछ नहीं करती, पर मैं खराब नहीं होने देती। एज अ सेड के आई डोंट लेट इट गो बैड। तो आज मुझे अगर यहाँ ड्राइनेस लग रही है तो मैं उसको तभी के तभी ठीक कर लूंगी। मैं बैठ के 2 हफ्ते उसमें प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगी कि वो तब तक हो जाए। और जाहिर बात है भैया, एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में मैं खुद का ध्यान नहीं रखूंगी तो तुम्हें क्या सलाह दूंगी। So I use the right products. I spend time and energy and right products on myself. You have to invest in yourself. उसमें टाइम की भी उतनी ही अहमियत। मेरे कलर्ड बाल हैं, so I will not use any other shampoo and conditioner other than the color protecting shampoo. मैं एक दिन के लिए भी if I'm traveling, I'll carry my own shampoo and conditioner. So some discipline in life and you are sort to go. Okay, doctor. So I'll quickly take the last question from our audience because we are running out of time. Uh, We can talk throughout the day. Topic yeah, खत्म नहीं होगा मेरा। yeah, doctor. Doctor, my daughter is 12 years old and she's having white hair at such a young age. What's the problem? Can we stop this white hair? व्हाइट हेयर की जो दिक्कत हो रही है, जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो रहा है तो मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्री मेच्योर ग्रेइंग की जो डेफिनेशन है वो लेस देन 16 ईयर ही है। मतलब अगर कोई 30 साल के आके बोलेगा तो मैं कहूंगी वो तो नॉर्मल ग्रे हो रहे हैं।
अगर बच्चे को नजला रहता है, जैसे साइनस काफी बच्चों का भरा हुआ रहता है या एलर्जिक रहता है, आपको ये जानना है कि ये एरिया है जो साइनसेस का है, तो अगर ये हमेशा फिल्ड रहते हैं या सर्कुलेशन नहीं हो रही है, जहां बालों की सर्कुलेशन कम हुई वहां पर ये प्रॉब्लम्स शुरू होने लगती हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पाबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, आता वो प्लांट से ही है। जब प्रीमेच्योर ग्रेइंग हो रही होती है बच्चों को, ये 12 से 16 वाले बच्चों को ही होती है, जैसे आईसाइट अगर वीक हो रही है और आपने उसको ठीक नहीं कराया तो बच्चा स्ट्रेन दे रहा है, तो वो सर्कुलेशन कम हो रही है, पाबा आप अपने नॉर्मल फिजिशियन से पूछ के 2 महीने के लिए आपको खिलाना है। जो बाल ग्रे हो गया है वो तो शायद रिकलर ना हो, पर ये शर्त यह है कि एक 12 साल के बच्चे को अगर आप 2 महीने के लिए पाबा दोगे, प्रीमेच्योर ग्रेइंग आगे के लिए रुक जाएगी। लेकिन उसकी वजह ढूंढिए कि क्या चीज है जो आपकी सर्कुलेशन को कम कर रही है। यहाँ पर ऑयल मसाज काम करेगा ना, तो यहाँ पर आप हल्के हाथ से ऑयल मसाज कीजिए, सर्कुलेशन बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगी तो फिर मेलानिन प्रोडक्शन होगा। Okay, doctor, very interesting. Doctor, so finally, would you like to give a take-home message or any other suggestion to our viewers today? टेक होम यही है कि इन्वेस्ट इन ऑन योर सेल्फ। मतलब जो भी शैम्पू मिला लगा लिया, मैं लोगों से पूछती हूँ, हस्बैंड से पूछती हूँ आप क्या यूज करते हो, जो ये रखती हैं वो यूज कर लेता हूँ, तो उसके बाल और तुम्हारे बाल में तो फर्क है ना। तो अपने लिए, वो चाहे मेल है या फीमेल है, मेल्स को तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है बिकॉज उनके बाल जल्दी जाते हैं। तो अनलेस एंड अनटिल यू नो व्हाट यू आर, what is your skin type, what is your hair type, and you know that you have to change things in summer and winter, एक अपना रूटीन बना लो। किसी के भी पास, किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट, मुझसे ही पूछ रहे हो, मैंने ही जैसे बताया कि अभी जिंक खा लो, फिर जुलाई में बायोटिन खा लेना, कहीं नोट कर लो। आई मेक पीपल मेक नोट्स, यू नो, कि आप अपने फोन में एक नोटपैड बना के रखिए, आपको आज तो याद है, कल आप भूल जाएंगे, मेरा तो काम है तो मुझे तो याद है। तो अपने लिए एक ईयरली शेड्यूल होना चाहिए कि सर्दी में विटामिन ए खाना है तब विटामिन ई खाना, डू दैट एंड यू विल बी हैप्पी एंड हेल्दी। एंड दूसरी चीज जो मैंने सबसे पहले बोली थी मोना, डीप ब्रीदिंग। जो हमें ऑक्सीजनेशन चाहिए, जो डीप ऑक्सीजनेशन चाहिए, जो ऑक्सीजन इज लाइफ, तो उसको हम अंदर ही नहीं पहुंचा रहे ना, हम यहीं पर ही ब्रीथ करके खत्म कर रहे हैं। तो मेंटेन योर इनर हेल्थ, मेंटेन योर आउटर हेल्थ एंड बी हैप्पी। Yes, doctor. I think today was like the today's show was about the season. Season is very important for both hair, skin, and the Exactly. hair health. Yes, 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 doctor. Very बिल्कुल informative, बिल्कुल। doctor. Thank you so much, Doctor, for sharing so much of information and all your expertise with us today. And I'm sure our viewers have enjoyed the show and have found the session very helpful. And thank you for answering all the questions of our viewers. And thank you so much. It was delight to have you. And thank you so much for taking your valuable time for us today. थैंक यू, थैंक यू। तो आज से आप सब जिंक खा रहे हैं मई और जून में, और जुलाई से, 1 जुलाई से बायोटिन शुरू कर रहे हैं पूरे 2 महीने के लिए। तो आज का टेक होम मैसेज ये Yes, Doctor. है। टेक Thank you. केयर, बाय। Thank you, ladies and gentlemen. We are signing off for today. Thank you, Doctor. Have a nice